Students, our today's topic is bryophytes, and bryophytes, you all know, are also known as amphibian plants. What does it mean? It means that bryophytes can live in soil as well as on the water. And why they require water? There are certain reasons. Because for the sexual reproduction they require water, because they produce basically biflagellated gametes, or you can say biflagellated sperm, and they needs water for their movement to reach up to the female sex organ, that is called archegonium. So that's why they are amphibian in nature. So basically these bryophytes, they are found in मॉइस्ट रीजन, शेडेड रीजन, जहाँ पर वाटर ज़्यादा होता है, जहाँ पर शेड होता है, वहाँ पर पाए जाते हैं ये। बेसिकली इन द हिल्स रीजन, हिली रीजन में आप इनको ज़्यादा पाएंगे कि ये वहाँ पर पाए जाते हैं, बिकॉज यू नो दैट हिली रीजन्स आर बेसिकली दे आर डैम्प, दे आर ह्यूमिड एंड दे आर एट द शेडेड लोकेलिटीज, तो दैट्स वाई दे आर फाउंड इन द हिली रीजन्स बेसिकली. And what are the other important roles which play these bryophytes are? They play very important role in the succession of the bare rocks or the soil. That means जहाँ पर कुछ भी नहीं उगता वहाँ पर सबसे पहले जो है वो bryophytes जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं. तो the plant body of bryophytes is basically differentiated देन द एल्गी. दैट मीन्स एल्गी में तो आप देखते थे कि जो प्लांट बॉडी होती थी वो बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं होती थी, बट ब्रायोफाइट्स में यू कैन सी दैट प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड. दैट मीन्स इट इज़ अ थैलस लाइक स्ट्रक्चर, आइदर दे आर प्रोस्टेट और इरेक्ट and attached to the substratum by the unicellular or multicellular rhizoids. अब now what are the rhizoids? Suppose ये एक thallus है, thallus जैसा structure है, तो here they are, there are some roots like structure. They are not exactly root, but ये ऐसे structures होते हैं, fine thread like structures, इनको rhizoids बोलते हैं. You do not call them roots, इनको roots नहीं बोलते, इनको rhizoids बोलते हैं. And bryophytes also, they no doubt they look like a small plant, but they do not have true roots, true stem और leaves. मतलब वो आपको plant जैसे तो लग रहे हैं, लाइक ये आपको यहाँ पर डायग्राम देख रहे हो, ये भी देख रहे हो, तो दे अपियर लाइक अ प्लांट बॉडी, की छोटे सा प्लांट है, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली प्लांट बॉडी. इसमें इस तरह से जैसे हमारी लीव्स होती हैं उस तरह से ना तो ट्रू लीव्स होती हैं और ना ही ट्रू रूट्स होती हैं. दे जस्ट अपियर, इनके स्ट्रक्चर ऐसे हैं कि ये आपको ऐसे लग रहा है कि ये रूट्स हैं, या आपको लग रहा है ये लीव्स हैं, बट दे आर नॉट ट्रू लीव्स. ये दीज आर रूट लाइफ लीफ लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, वैसे लगते हैं पर ये है नहीं. And what another important thing is that bryophytes have two different kinds of you can say stages in their life cycle. One is known as bryophyte, one is known as gametophyte and another is known as sporophyte. So the main plant body of the bryophyte is haploid, that means n number. So ये जो n number है, this is known as haploid number, and that's why you call them that main plant body of the bryophyte is haploid and it produces gamete. इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफिटिक स्टेज. तो मेन प्लांट बॉडी इज नोन एज गैमेटोफिटिक स्टेज. एंड ब्रायोफाइट्स में टू टाइप्स के सेक्स ऑर्गन्स हैं एंड दे आर मल्टी सेलुलर. द मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथ्रीडियम. एंथ्रीडियम, you can call them antheridium. And these antheridium, that means male sex organ, they produce biflagellated, this kind of biflagellated gametes. ये male gamete हो गया, ये biflagellated है means two flagellas हैं. And they are also known as anthrozoids. इनको आप anthrozoids भी बोल सकते हो क्योंकि antheridium के अंदर बने हैं. Now female sex organ is known as archegonium. Here I am going to write archegonium, and this archegonium is somewhat flask like structure, flask shaped structure, and they you can say that archegonium produces the ovum or egg, and this anthrozoid fuses with the egg to produce the zygote. If we see the structure of archegonium and antheridium, you can see it here. These are the structures which are given here. These are the archegonium, this one, this is archegonium, this one, and these are the antheridium and archegonium. Both are present into the single you can say here they can say, you can see the single archegonium, and here it is present in
many, that means 1 2 3, there are 3 archegoniums they have shown. So these are the archegonium, and you can see that these are the leaf. These are, suppose अगर आप इसको स्ट्रक्चर करें तो you will find that it is a flower shape structure, and this is egg. यहाँ पर ये जो है this is egg और oosphere. तो this is, you can divide it into 3 parts, that is known as cover cell, or you can say neck region. Second one is cover cell, neck region, and the वेंट्रल कैविटी, एंड वेंटर कैविटी में एग सिचुएटेड है. तो दिस इज कॉल्ड वेंटर, नेक एंड कवर सेल. तो ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर. और यहाँ पर जो ओवम है वो एग यहाँ पर है, ये देख सकते हो आप यहाँ पर, दिस इज ओवम, एंड बाकी का ये स्ट्रक्चर है. एंड हेयर इट इज दे शोन द स्पर्म, एंट्री ऑफ स्पर्म उन्होंने दिखाई है. एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडियम. ये स्ट्रक्चर एंथ्रीडियम का है. यू कैन सी दैट इट इज़ अ क्लब शेप स्ट्रक्चर. ये कंबाइंड दिखाया हुआ है लीफ के अंदर कि किस तरीके से प्रेजेंट है. एंड दिस इज द सिंगल वन. तो ऑपरकुलम मीन्स समथिंग विच इज़ लाइक ऐसे लिड की तरह से, ऐसे ऑपरकुलम होता है. ये ओपन हो जाता है, यहाँ से स्पर्म बाहर निकल जाता है, फिर ये कवर अप हो जाता है. तो दिस इज ऑपरकुलम. देन जैकेट लेयर मीन्स उसके चारों तरफ सराउंड करती हुई एक सेल्स हैं, सेल्स हैं थोड़ी सी जो उनको कवरिंग देते हैं. एंड इस साथ साथ बीच में एंथ्रोजॉइड्स हैं, सेल्स हैं, एंथ्रोसाइट्स भी आप बोल सकते हैं, मदर सेल्स हैं वो, उनके डिवीजन से जो मेल गैमीट्स हैं वो फॉर्म होते हैं. तो एंथ्रोजॉइड दैट मीन्स विच आर फॉर्म इनटू द एंथ्रीडियम, यहाँ पे जो बनते हैं, एंड ओवम जो कि यहाँ पर बनते हैं, दे फ्यूज एंड दे फॉर्म अ जाइगोट. यू ऑल नो दैट द फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म produces the zygote. So anthrozoid fuses with the egg and produces zygote. Zygote do not undergo reduction division. That means उसमें तुरंत से reduction division immediately नहीं होता. They produce a multicellular structure that is called sporophyte. That means after fertilization जो zygote होगा, zygote produce करेगा, ये zygote होगा, and zygote produces the sporophyte. It produces the sporophyte, and the sporophyte जो है it is you can say not free living, and it attached to the photosynthetic gametophyte, because this is the gametophyte. main plant body क्या है, ये जो मेन प्लांट बॉडी है, दिस इज गैमेटोफाइट, ये है. तो जो स्पोरोफाइट बनेगा, ये स्पोरोफाइट ही दिखा रहे हैं यहाँ पे जो बना हुआ है ऊपर ये. तो ये इसके ऊपर स्पोरोफाइट अटैच रहता है. कब तक? जब तक कि वो लीव्स खुद नहीं डेवलप कर लेता. जब तक लीव नहीं डेवलप होंगी, सो इट विल गेट द फूड फ्रॉम द गैमेटोफाइट. तो इसको गैमेटोफाइट से ही फूड लेना होता है. तो दैट्स वाई जब तक कि ये स्पोरोफाइट जो है ये अटैच रहता है फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से, एंड इट गेट्स न्यूट्रिशन और यू कैन से नरिशमेंट फ्रॉम इट. एंड सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन. स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स हैं वो रिडक्शन मीन्स मियोसिस, एंड प्रोड्यूस द हैप्लॉइड स्पोर्स. तो यहाँ पर क्या बनेंगे? हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे. एंड दीज स्पोर्स जर्मिनेट एंड प्रोड्यूसेस द गैमेटोफाइट. ये जर्मिनेट करेगा और वापस फिर से क्या बनाएगा? प्लांट बॉडी बनाएगा. वी ऑल नो दैट बिकॉज द मेन प्लांट बॉडी इज द गैमेटोफाइट. तो फिर से अगेन प्लांट बॉडी बन जाती है इसके अंदर. तो ये साइकिल कीप ऑन कंटिन्यूस. तो ब्रायोफाइट इन जनरली अगर हम बात करें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट. यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दीज आर द डायग्राम्स ऑफ द प्लांट बॉडी. देन दे आर शोइंग मेल एंड फीमेल थैलस, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं. आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियस 4 लिखा हुआ है यहाँ पर. एंथीडियम तो यू कैन सी इजीली. देन दिस इज द स्पोरोगोनियम ऑफ द स्पोरोफाइट जो मैंने भी आपको बताया, ये वो स्ट्रक्चर है. And antheridium male sex organ, female sex organ, you can see it here. Now capsule of funaria, तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे इसको. And bryophyte, if we talk about the economic importance, so mosses are basically they are not of very much importance, economic importance है ना. उनकी जो economic importance है ये बहुत कम है, बहुत less है. तो mosses provide food for the herbaceous mammals. That means कि they can use as a you can say fodder for the, or you can food for the animals. तो वो animals food की तरह उसको लेते हैं. birds भी उसको लेते हैं. कुछ species हैं जो स्फेगनम अ काइंड ऑफ ब्रायोफाइट, स्फेगनम की जो पीट प्रोवाइड करता है, PEAT, पीट. एंड ये जो पीट होता है ये एज अ फ्यूल की तरह से यूज़ किया जाता है, एंड एज अ पैकेजिंग मटेरियल की तरह से यूज़ किया जाता है चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बिकॉज दे हैव गुड कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर. तो गार्डनर्स मोस्टली यूज दिस एट द टाइम ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन,
एंड ऑल्सो क्लेई सॉइल के साथ ये जो है मिक्स कर देते हैं सो दैट इट कैन इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। तो सॉइल को बाइंड करने के काम आता है, तो सॉइल की टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। और जो यू कैन से सॉइल बिल्डर भी आप इसको कह सकते हो। इट ऑल्सो यूज़ इन फिलिंग द पॉन्ड्स एंड पूल्स इट्सेट्रा, एंड बिकॉज ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ दे आर कम्प्लीटली फिल्ड, ये बहुत जल्दी भर जाते हैं क्योंकि इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट जो है वो होती है। तो ब्रायोफाइट्स आर इम्पॉर्टेंट इन द सॉयल इरोजन ऑल्सो, बिकॉज वो जब ग्रो कर जाते हैं सॉयल के ऊपर तो कार्पेट एक मैट की तरह बन जाता है। तो मिट्टी जो है वो नीचे से क्या नहीं होने पाती, वो इरोड नहीं होने पाती, वो सॉयल जो है वो लूज़ नहीं होने पाती। तो ये वॉश अवे होने से रोकते हैं सॉयल को। एंड mosses along with the lichens are the first organism to colonize on the rocks। तो सबसे पहले हैं जो lichens के साथ साथ ये भी rocks पर सबसे पहले grow करते हैं। That means they form a soil। तो ecological importance इनकी है बहुत ज़्यादा कि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर ये ग्रो करते हैं। एंड दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉयल, क्योंकि जब तक सॉयल नहीं बनेगी वहाँ पर कुछ और ग्रो नहीं कर सकता। तो दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉयल। तो सिंस मॉसेज फॉर्म डेंस मैटर ऑन द सॉयल दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन। पानी जैसे बारिश होती है अगर वो मिट्टी पे, ये सारे ब्रायोफाइट्स होते हैं तो जो सॉइल इरोजन है उससे प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू टू, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। एंड लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस पे जो हमने इनको डिवाइड किया है ये डिपेंड करता है उनके स्टेजेस ऑफ लाइफ के ऊपर। हमने उनको डिवाइड किया है टू पार्ट्स में, जो कि हम आगे अभी स्टडी करेंगे। बिकॉज हैप्लॉइड स्पोर्स के बाद में जो क्या स्टेजेस डेवलप होंगी, दैट मीन्स स्पोरोफाइट कैसे डेवलप होगा एंड गैमेटोफाइट कैसे डेवलप होगा, इट डिपेंड्स अपॉन दैट। सो इन द नेक्स्ट lecture we will discuss about the different thing। And one more important thing, that depending on the characters of gametophyte, bryophytes you can divide liverworts and mosses। So what are they? The bryophytes show, or you can say exhibit, the alternation of generation also। What do you mean by alternation of generation? Alternation of generation means कि जहाँ पर दो फेजेस लाइफ की, लाइक गैमेटोफाइट इज़ वन फेज, स्पोरोफाइट इज़ अनदर फेज, एंड दे फॉलो ईच अदर इन अ रेगुलर सीक्वेंस। दैट मीन्स पहले गैमेटोफाइट आएगी, फिर स्पोरोफाइट जनरेशन आएगी, एंड देन अगेन गैमेटोफाइट जनरेशन आएगी। एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, आई होप, कि यहाँ पर जैसे अभी हमने स्टडी किया तो फर्स्ट फेज इज गैमेटोफिटिक स्टेज, एंड दिस इज द गैमेटोफिटिक स्टेज। दीज आर showing गैमेटोफिटिक स्टेज, that means main plant body। तो they produces male and female gametes। You can see these are the female part and these are the male part। तो they produce antheridium and archegonium। They fuse, that means sperm, or you can say anthrozoids from the male part and ova from the female part। तो they fuse egg and anthrozoids, they fuse and they produce the अनदर स्टेज ऑफ देयर लाइफ। दैट मीन्स कि जब स्पोरोफाइट फेज इमीडिएट स्टार्ट हो जाती है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड स्पर्म। तो जब डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है, जाइगोट से स्पोरोगोनियम बन जाता है, एंड स्पोरोगोनियम, हियर यू कैन सी दैट दिस इज स्पोरोगोनियम। यहाँ पर फूट है, इसके तीन पार्ट्स में डिवाइड है ये स्पोरोगोनियम। इफ़ यू कैन सी फूट, सीटा एंड कैप्सूल, तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो स्पोरोफाइट बन गया गैमेटोफाइट से तुरंत। एंड स्पोरोफाइट जब बन जाता है after fertilization of egg and sperm, so this sporogonium have food, seta and capsule bears the various kinds of you can say spores। तो haploid spores are formed after meiosis, and spores you can say is the first cell of gametophytic generation, क्योंकि स्पोर बनेंगे और स्पोर से ही गैमेटोफिटिक जनरेशन यानी ये वाली जनरेशन बनेगी। तो ये फर्स्ट सेल जो है वो होती है। एंड स्पोर जर्मिनेशन गिव राइज टू द प्लांट बॉडी विच इज़ ऑल्सो हैप्लॉइड, क्योंकि स्पोर क्या होते हैं, स्पोर तो हैप्लॉइड होते हैं। तो स्पोर से जर्मिनेट हुई बॉडी, तो बॉडी कैसी हुई, वो भी हैप्लॉइड हुई। तो इस तरह से आपने देखा कि गैमेटोफिटिक स्टेज और जो स्पोरोफिटिक स्टेज हैं दे ऑल्टरनेट ईच अदर, माने कि वो एक के बाद एक जो है वो आते रहते हैं। एंड ब्रायोफाइट्स आर कंसिडर्ड more advanced than the green algae because they represent multicellular sporophytic generation। तो algae से ज़्यादा एडवांस्ड ये माने जाते हैं, algae के बाद ही आते हैं। तो in the next topic we will discuss about the liverwort and mosses। I hope you can understand this chapter। Thank you।